आप सभी का स्वागत है अकाउंट्स ट्रेनिंग के आज के सेशन में। और जैसा कि आपको बताया गया था, आपकी जो क्लास है आपकी जीएसटी के ऊपर हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, जिसमें आप सेल्स एंड परचेज के ऊपर हम बात करेंगे। सो फॉर द टेकिंग दिस सेशन वी हैव विद अस मिस संजू सैनी जी, एंड नाउ लाइक टू इनवाइट मिस्टर दिलीप फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन एज वेल। यस दिलीप, आप शुरू कीजिए प्लीज। मिस्टर दिलीप, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक नेटवर्क इशू है, मैं ही कर देता हूँ। दिलीप, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हेलो हेलो, हाँ दिलीप प्लीज। हेलो। So I'm going to introduce Ms. Dipti Chala, which is our leading person today in this session. So she is a education professional with a Master of Philosophy focused in behavioral science education from CCSE Merit. She is an emotional intelligence trainer and coach. She has 20 years of rich in-depth and extensive experience in teaching and mentoring the youth. She exhibits excellent communication, interpersonal, problem solving, leadership, and team building skills. She is dedicated and committed to harnessing 21st century skills in today's youth. She has won International Award for Young People IAYP. Currently, Ms. Chawla is associated with Kothari International School, Noida as a HOD, Social Science Department and Activity Head. Now I'm going to introduce our resource person, Ms. Sanju Saini ji. Sanju Saini is an advocate specializing in income tax matters and practices primarily before the Income Tax Appellate Tribunal. She completed her graduation with a Bachelor of Commerce from Guru Gobind Singh College of Commerce. Following her undergraduate studies, she pursued her law degree from Mewar Institute, Ghaziabad. During her LLB course, she gained practical experience as a part-time intern at VKHS and Associates, led by CA Vinod Kalra, which further enhanced her legal acumen. After completing her LLB, Sanju worked at Tizari Court, gaining valuable exposure to courtroom proceedings under the guidance of esteemed Jyotika Kalra ma'am. She led her to join Baldev Raj and Company, where she has been a practicing advocate for the past 4 years. Throughout, her journey, she has been mentored and guided by Jyotika Kalra, the president of Saksham Rozgar Society, and she has continuously supported and motivated her in her both personal and professional life. Sanju Sen is now an executive member of Saksham Rozgar Society. So, thank you for the uh, pro- the introduction, and I'd like to invite Ms. Sanju Saini to start the session. First of all, thank you, Abhishek, for brief introduction of me, and thank you, Saksham Rozgar Society and Jyotika ma'am to giving this opportunity to take this class. तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स एंड परचेज विद जीएसटी इन टेली प्राइम। तो आज की क्लास में हम सेल और परचेज में जीएसटी की एंट्री के साथ सीखेंगे। सेल और परचेज की एंट्री आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर उसमें हम जीएसटी सिखाएंगे साथ में कि जीएसटी कैसे इस पे एप्लीकेबल होता है और उसकी एंट्रीज कैसे होती है बेसिकली प्राइम टेली में। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। तो पहले कल का जो पूरा सेशन था हमारा जीएसटी के ऊपर ही था। हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी क्या होता है, तो थोड़ा सा हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि जीएसटी क्या है, टाइप्स क्या हैं इसके। तो व्हाट इज जीएसटी? तो हम बोलते हैं कि एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कॉल्ड जीएसटी। कोई भी गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स पे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे या फिर दोनों पे ही जो टैक्स लग रहा है वो क्या है? जीएसटी है। टाइप्स की बात करते हैं हम लोग। तो जीएसटी के 3 टाइप्स हैं। एक तो सीजीएसटी जो कि सेंट्रल का है, एसजीएसटी जो कि स्टेट का है, और साथ ही आईजीएसटी जो कि इंटीग्रेटेड है।
नाउ जो हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी और उसके इम्पोर्टेंस की, तो कल हमने इससे भी डिस्कस किया था कि उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे जो जीएसटी है वो किन के लिए मैंडेटरी है, ये भी डिस्कस किया था, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सप्लाई करते हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो कि है इंटरस्टेट, जो कि आपका है इंटरस्टेट है, तो उसमें जो इंटरस्टेट है तो आप पे जीएसटी मैंडेटरी है लेना। दूसरा, अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तभी भी जीएसटी मैंडेटरी है आपके लिए, या आप कोई इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज तभी भी आपके लिए मैंडेटरी है। लास्टली जो अगर टर्नओवर की डिस्कस किया था हमने कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं और आपकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से एक्सीड करती है तब आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। वैसे ही जो अगर आप सर्विसेज के सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की, तो उसमें जो लिमिट है वो है 20 लाख की आपकी। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कल वाली क्लास मैंने एक बार रिवाइज कर दिया आपके लिए। अब आता है हमारे की पॉइंट्स इन जीएसटी। आपको ये जो जीएसटी जब सीखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी पेबल क्या है या जीएसटी रिसीवेबल क्या है। तो इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा ब्रीफ किया है कि जो आपका, हाँ जी, You please continue, ओके। Sanjay. तो जो इनपुट जीएसटी है वो हमारे परचेजेस पे लगता है। जैसे कि आपने कोई गुड परचेज किया तो आपने सेलर को क्या होगा दिया होगा, टैक्स दिया होगा। तो वो जो टैक्स है वो क्या है आपके लिए, इनपुट जीएसटी। उसी जगह पे अगर आप कहीं आप बिजनेसमैन है, आप सेल कर रहे हो, तो आपने जो आपकी जो बायर है जो आपसे जो सामान ले रहा है उससे जो आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है उसे बोलोगे आप आउटपुट जीएसटी। ठीक है। अब आता है हमारा नेट जीएसटी पेबल क्या होता है। आपने टैक्स कलेक्ट किया गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए, ऐसे ही आपने जब परचेज किया है तो आपने किसी जो सेलर से परचेज किया या बिजनेस से परचेज किया तो आपने भी तो टैक्स दिया जमा कराने के लिए गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। तो आपको जो जितना देना है और जो आपने ऑलरेडी जमा करा दिया उसका जो आप जो माइनस करेंगे, मतलब जो भी नेट जो आउटपुट जो देना था प्लस में जितना दे दिया आपने उसका जो डिफरेंस है वो होगा आपका नेट जीएसटी पेबल। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। आपने अगर गुड्स खरीदा, 10,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा जिसमें आपने 18% का जीएसटी लगाया, मतलब 1800 रुपए आपने दुकान वाले को दे दिया, तो आपने टोटल उसको पेमेंट कितनी की करी, 11,800 की। उसी जगह पे आपने वही वाला गुड्स जो परचेज किया था आपने वो 20,000 में बेच दिया। 10,000 का गुड आपने कितने में बेच दिया, 20,000 में बेच दिया। और आपने यहाँ पे भी 18% जीएसटी लगाया जो कि कितना हो गया, 3,600 रुपए हो गया। अब आपको गवर्नमेंट को 3,600 रुपए जमा कराने हैं, लेकिन आपने 1800 रुपए तो ऑलरेडी जमा करा दिया है, तो आप 3,600 थोड़ी अब जमा कराओगे। तो आपने उसी गुड्स पे तो आपने टैक्स पहले जमा करा चुके हो, तो 3,600 माइनस 1800 इज इक्वल टू 1800 आपको नेट पेबल बनता है। सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री फॉर परचेज इंट्रास्टेट। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है, विद इन स्टेट। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है और साथ में एंट्रीज भी लिखी है और साथ साथ मैं इसको टेली में भी आपको बताऊंगी। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। 1 अप्रैल 2025 4 चेयर्स परचेज फॉर ₹10,000, 2,500 each with GST, with 18% GST from Orient Furniture Delhi with invoice number 00012। ठीक है, तो इस एंट्री में क्या मैंने 4 चेयर परचेज करी है 10,000 रुपए की, जिसमें से एक की जो वैल्यू है वह है 2,500 रुपए, और उसमें प्लस में मैंने 18% जीएसटी भी दिया है और लिया किससे, ओरिएंट फर्नीचर से जो कि दिल्ली की पार्टी है। तो मैं जो मन्नत फर्नीचर से हमारा ऑलरेडी अकाउंट हम चला रहे हैं इसमें, जिसमें हमने सारी एंट्रीज करी है, मैं उसी डाटा को थोड़ा फॉलो करूंगी। और मैं दिल्ली की मान रही हूँ कि मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और मैंने जो ये परचेज करा है वो भी दिल्ली से ही किया है। तो मेरे पे कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी सीजीएसटी और और एसजीएसटी। एसजीएसटी, राइट। अब इसके इसमें आपने परचेज किया है, परचेज किया है तो आपको क्या लगेगा, इनपुट या आउटपुट? इनपुट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें हमने एंट्री करी कि परचेज करिए तो परचेज अकाउंट डेबिट जो कि 10,000 रुपए है, इनपुट जीएस सीजीएसटी 900,
और इनपुट SGST वो भी 900, क्योंकि हमने 18% है 9% कर दिया। और जो मेरा जो क्रेडिटर कौन है मेरा? ओरिएंट फर्नीचर, जो कि डेली की पार्टी है। मैंने उसको टोटल पेमेंट अब कितनी करनी है? 11,800 की। तो अब मैं साथ में इसके साथ में टेली में भी आपको एंट्री बता देती हूँ। थोड़ा टाइम इजी करने के लिए मैंने कुछ जो लेजर्स आपने ऑलरेडी क्रिएट करना सीख लिया, तो मैंने टाइम शॉर्ट करने के लिए खुद लेजर्स क्रिएट करके रेडी रखे हैं। तो मैं पहले जाती हूँ वाउचर्स में। ठीक है, वाउचर्स में चले गए हम। अब हमें एंट्री कौन सी करनी है? परचेज की। तो परचेज का शॉर्टकट कौन बताएगा? आपने ऑलरेडी सीख F9 चुके हैं, F9, राइट। तो हम F9 कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें हमारा ये देखो, इनवॉइस नंबर मुझे पहले पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो मेरे पास इनवॉइस नंबर है, F9। ठीक है। तो मेरा इनवॉइस नंबर क्या है? 00012। ठीक है, मैंने ये एंटर कर लिया। डेट मैंने कब लिया, कब परचेज किया था? 1 तारीख को। तो मैंने इसको कर दिया 1 अप्रैल 2025। अब पार्टी का नाम ओरिएंट फर्नीचर। तो मैंने बताया ना, मैंने टाइम शॉर्ट करने के लिए क्रिएट कर लिए थे लेजर। अगर आपको फिर भी देखना है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखो, ओरिएंट फर्नीचर, ये मेरा क्रेडिटर है, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल दिया। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। और 30 डेज का मैंने क्रेडिट पीरियड दिया है इसका, और इसका ये मैंने एंटर करके इसको, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो, इसलिए मैं इसको इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रही। और इसको मैंने एंटर कर दिया। अब आता है मेरा, अब ये जो मेरा जो परचेज है मेरा, ये कैसा है? GST वाला है। तो मैंने इसके लिए एक लेजर क्रिएट कर लिया था, परचेज विद GST। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये परचेज अकाउंट डेबिट, ये परचेज अकाउंट विद GST है। तो ये सिंपल ही है, परचेज अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, ये टाइप में मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ये भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया। GST एप्लीकेबल करा है, क्योंकि GST ही एप्लीकेबल कर रहे हैं हम इसमें। और इसको मैंने एंटर कर दिया। ये मेरा, इससे पहले दिखाती हूँ कि यहाँ पे पूछता है टाइप ऑफ सप्लाई। तो मेरा गुड्स का है, मैं गुड्स खरीद भी रही हूँ और गुड्स ही बेच रही हूँ, राइट। गुड्स का खाने का आइटम होता है? नहीं, गुड्स का मतलब खाने का आइटम नहीं है, कोई भी सामान हो सकता है। मे बी आपका लैपटॉप है, टेलीफोन है, या पर्स है, कुछ भी हो सकता है। सर्विसेज, आपने जब सर्विस दे रहे हो, जी राइट। तो जी। ये कर दिया मैंने, और यहाँ पे यस कर दिया, और ये क्रिएट हो गया। अब क्या बोल रहा है वो? हमने क्या बेचा है यहाँ, क्या खरीदा है यहाँ पे? 4 चेयर्स लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेयर्स करी। कितनी क्वांटिटी है? 4। एंटर करा। रेट क्या है एक फर्नीचर का, मेरा चेयर का? 2500। मैंने 2500 कर दिया। टोटल आ गया 10,000 रुपए। एंटर। इसको मैं 2 बार एंटर करूंगी, एक बार एंटर फिर एंटर। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी टैक्स। तो मेरा यहाँ पे क्या है? इनपुट CGST। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? इनपुट CGST। तो मैंने इसको करा है CGST इनपुट लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। तो ये ऑटो कैलकुलेट हो गया। तो मैं एक बार इसका आपका लेजर दिखा देती हूँ, मैंने इसको लेजर क्रिएट कर चुकी थी पहले ही। CGST इनपुट, ये क्या है आपका? ड्यूटी एंड टैक्सेस। क्या है आपका ये? क्योंकि टैक्स है ना ये आपका, तो ये क्या है इसमें कि कौन से हेड में डालेंगे हम इसको? ड्यूटी एंड टैक्सेस में। फिर इसके बाद हमने यहाँ से, मैंने इसको एक्चुअली, आप जब ने लास्ट क्लास लिया होगा तो आपको हमने इनेबल करना नहीं बताया था कि GST कैसे इनेबल करते हैं। वो मैं इसको बता दूंगी, मैंने इसमें इनेबल कर रखा है। GST मैंने इनेबल करा, तो GST आएगा तो वो पूछेगा कौन सा टाइप, क्या है आपका टाइप। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि CGST, SGST और IGST। तो मैं अभी कौन सा बना रही हूँ लेजर? CGST इनपुट का। तो मैं कौन से टाइप में डालूंगी? CGST में डालूंगी इसको। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ऐसे ही मैं इसको एंटर कर दूंगी। ठीक है, और ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा मेरा। अब देखो मेरा मैच करता है, मेरा ये हो गया इनपुट CGST। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगी? SGST इनपुट। ठीक है, ये भी मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेट है, ये भी मैंने सेम ऐसे ही बनाया है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये हो गया मेरा SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा मेरा। ये मैंने GST डाल दिया, और ये मेरा किस में आएगा? CGST UTGST। ठीक है,
और मैंने इसको एंटर 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 कर दिया। मैम 9% कहाँ पे हमने लगाया लिखा है? नहीं, ये 9% हमने आप इसके ओरिएंट फर्नीचर में ही हमने चेंज कर दिया है इसको, क्योंकि जो माल खरीद रहे हैं वो मे बी 9 का भी हो सकता है, वो और भी कोई प्राइस का भी हो सकता है। तो मैंने मेजर रखा है 18% का। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये 18% ही लेगा ये, तो 9% मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं नरेशन लिख देती हूँ उसका। बीइंग 4 chairs purchased। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई हमारी, जो कि हमारी है इंट्रा स्टेट वाली। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमने परचेज कर सीख लिया कैसे करना है जीएसटी का, वो भी इंट्रा का। अब हम कर रहे हैं सेल की एंट्री, जो कि इंट्रा स्टेट कर रहे हैं। एक ही स्टेट से, मैं दिल्ली की हूँ, अब मैं दिल्ली में ही माल बेचूंगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 4 chairs sold for rupees 15,000 3,750 each with 18% GST to Mr. आशीष, जो कि दिल्ली के हैं। तो दिल्ली, ये जो आशीष हैं वो कौन है हमारे? डेटर। डेटर। तो डेटर क्या होते हैं हमारे? डेटर अकाउंट क्या होगा? डेबिट। हाँ, एसेट है तो डेबिट होगा। ठीक है, तो जो डेटर में अमाउंट आएगा कौन सा आएगा हमारा? जो मैंने जितने में मैं माल बेच रही हूँ, प्लस में उसमें टैक्स इंक्लूड करके, क्योंकि अब मुझे कितना पैसे लेना है उससे। एक तो मेरा जो चेयर का प्राइस है, प्लस में जो मेरा जीएसटी का प्राइस है। ठीक है, तो मैंने डेटर में अमाउंट कितना डाल दिया? 15,000, प्लस में जो मेरा टैक्स बनता है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब 2 में क्या आएगा? सेल, क्योंकि सेल क्या मेरी इनकम है। कितने की चेयर बेची है मैंने? है तो चाहे 15,000 रुपए की ना, तो मैंने 15,000 रुपए एंटर कर दिए यहाँ पे। और 2 आउटपुट। अब यहाँ पे क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ, तो यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा। अब क्या आएगा? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अब हम आते हैं एंट्री के ऊपर। अब पहले हमने इस परचेज की एंट्री करी थी, अब हम सेल की एंट्री कर रहे हैं। तो अब कौन बताएगा कि मुझे शॉर्ट की क्या है मेरा सेल पे जाने का? F8। F8। तो मैं F8 प्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। पार्टी का नाम क्या है? मिस्टर आशीष। तो मैं आशीष का मैंने नाम पहले ही क्रिएट करके रखा था, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। आशीष कौन से हेड में आएगा हमारा? सन्ड्री डेटर्स। मुझे मेंटेन करना है बिल टू बिल, ये भी मैंने यस कर दिया और इसको एंटर 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 कर दिया, क्योंकि ये दिल्ली का, मैंने दिल्ली डाल दिया इसमें। ठीक है, अब मुझे कौन सा लेजर डालना है? सेल्स विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी? सेल्स विद जीएसटी। वेरी गुड, तो मुझे ये सेल्स विद जीएसटी डालना है। अब मैंने यहाँ पे कौन सा गुड्स बेचा है? आइटम क्या है वो? 4 चेयर्स। तो यहाँ पे मैं चेयर्स डाल देती हूँ। 4 पीस थे मेरे पास, मैंने 4 पीस बेच रही हूँ। कितने रेट का है ये? 3750 का ईच है। ये 15,000 हो गया। अब एक एंटर के बाद मुझे दोबारा एंटर करना है, यहाँ पे मैं टैक्स लगाऊंगी। तो अब मैं क्या लगाऊंगी? आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि विद इन दिल्ली बेच रही हूँ मैं, तो सीजीएसटी, क्योंकि कौन सा होगा? सीजीएसटी आउटपुट, ये भी कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट आता है मेरा एसजीएसटी आउटपुट। ठीक है, एंटर करा, ये देखो मेरा मैच हो गया। मेरे जो डेटर से मुझे पैसे लेने हैं आशीष से, कितने लेने हैं? 17,700 रुपए लेने हैं मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नरेशन डाल देती हूँ। बीइंग 4 chairs sold to Mr. आशीष। सेल और परचेज आपको इंटरस्टेट समझ में आ गया? जी मैडम। यस मैम।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं जो कि इंटर स्टेट के। तो हम जर्नल एंट्री फॉर इंटर स्टेट परचेज। अब आप दिल्ली का माल कहीं और दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन हमने रेडी रखा है, तो इसको मैं रीड कर देती हूँ। 2 अप्रैल 2025 टू सोफा परचेज फॉर 50,000 जो कि 25 ईच है with 18% GST from Skyline Furniture UP with invoice number SKY GST 002। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो परचेज, यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? हमने 2 सोफा बेचा, एक 25,000 का एक है, तो 50,000 ये हो गए मेरे। फिर मेरा डेबिट क्या होगा? इनपुट IGST। यहाँ पे CGST SD लगेगा क्या? नो मैम, क्यों नहीं लगेगा? इंट्रा स्टेट हाँ, क्योंकि अब हम मैं दिल्ली का मैं बिजनेस करती हूँ और मैंने कहाँ से खरीदा है? यूपी से माल मंगवाया है, तो मेरे को यहाँ पे IGST पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 18% दे रही हूँ, तो मैंने 9,000 कैलकुलेट कर लिया। और अब मुझे क्रेडिटर को पैसा देना है। कितना देना है मुझे? 59,000। राइट, ठीक है। अब मैं इसकी एंट्री करूँ टैली में? ठीक है, तो पार्टी क्या है मेरी? पहले मैं कहती हूँ कि मेरा हो गया, अरे बगल में ये मौसी ये अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरा स्काईलाइन फर्नीचर मैंने एंटर कर लिया इसको, मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। स्काईलाइन फर्नीचर हो गया। ये कौन है मेरे को पैसा, ये मैंने इनको माल इससे खरीदा है, तो कौन है मेरे? क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर में मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने एंटर करा, ये एंटर, ये मेरी यूपी की पार्टी है। यहाँ पे लिखा है ना यूपी, तो मैंने ये डाल दिया यूपी। यहाँ पे स्टेट डालना होता है, मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। और यहाँ पे एंटर। इसके अलावा आपको, अगर आपके पास पिन नंबर, मेरे पास सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। पिन नंबर भी डालना मैंडेटरी होता है, ये पिन नंबर डालो, GST नंबर है अवेलेबल तो वो भी डालो और एंटर कर दो। ठीक है, अब ये आ गया हमारा ये। अब आता है, अब हमें कौन से लेजर में डालना है? सेल्स विद या परचेज विद? GST, परचेज विद सेल्स विद, GST। हाँ नहीं, सेल्स विद GST डालना है। ठीक है, अब आइटम कौन सा लिया है हमने, कौन सा बेचा है हमने? आइटम सोफा बेचा मैम है। परचेज में एंटर होगा, सेल में एंटर करेंगे। सेल में नहीं एंटर होगा, परचेज में एंटर होगा। हाँ, ये परचेज है। परचेज है। हाँ, ओके, ये मैंने शायद परचेज कर दिया है। ठीक है, ये मैं कर देती हूँ उसको सोफा। सोफा हमने कितने कितने खरीदे हैं? 2। रेट कितना है इसका? 25,000। ये 50,000 का हो गया हमारा। एक बार एंटर किया, फिर एक और बार एंटर किया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे टैक्स। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट IGST। इसको देख लेते हैं हम, ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है इसमें। परसेंट टैक्स। नहीं, यहाँ पे हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। इसको मैं मैम यही तो जानना है कहाँ से परसेंट सेट हाँ, होता है। मैं वही बताती हूँ आपको। यहाँ से कर देते हैं हम, एप्लीकेबल कर दिया, ये कर दिया हमने। यहाँ 18% लगाया था हमने।
इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक बार मैडम इंटर जो आपने स्काईलाइन जो लेजर खोला है ना, वो उत्तर प्रदेश में डाला हुआ है पहला पॉइंट। नीचे आईजीएसटी में सिलेक्ट नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक लग के नहीं आता। क्या कहते हो आप? जो आप नहीं मैडम वो हो जाएगा दोबारा एंट्री करो। आप बेसिकली क्या था, पहले आपने सेल वाउचर सेलेक्ट कर लिया था ना, इसलिए वो टैक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। आप दोबारा करो, हो जाएगा। आप करो, आप परचेज की एंट्री करो, हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। SKY GST 002, ये हमने 2 तारीख को लिया है। ये हो गया मेरा स्काईलाइन, ये हो गया मेरा ये परचेज, और मैंने ये लिया सोफा। $25,000। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है ईबे बिल का। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन नहीं आया था क्योंकि जो हमारी जो टोटल इनवॉइस था वो कम था। मैं जैसे तो इसमें क्या है, 50,000 से ऊपर मेरा इनवॉइसिंग हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि प्रोवाइड GST ईबे बिल डिटेल्स। तो अगर मेरा जो लिमिट बिल 50,000 से ऊपर जाएगा तो मुझे ईबे बिल का भी डिटेल डालना होता है। पर अभी मेरे पास ईबे बिल की डिटेल्स है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी ईबे बिल क्या होता है। तो अभी मैं इसको फिलहाल नो कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आपका ये करोगे, आप ये ईबे बिल की डिटेल डालनी होती है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे इसमें आपको क्या डालना होता है, ईबे बिल नंबर डालना होता है जो कि ऑनलाइन जनरेट होता है, डेट डालना होता है, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है वो डालना होता है, उसके बाद शिप कहाँ होगा वो डालना होता है, और ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालनी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें डालनी होती है जब भी आपका जो बिल है वो 50,000 से ऊपर होएगा। लेकिन एक दिल्ली है और भी कुछ स्पेशल स्टेट है जहाँ पे जो लिमिट है वो 1 लाख की रखी गई है। ठीक है, अगर ईबे बिल में और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी आपको मैडम जी एक चीज पूछना है, कैसे जैसे एप्लीकेबल करते हैं। हेलो हाँ जी। मैडम जी, जैसे कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, आधार कार्ड से मेरे को वो आधार कार्ड से माल मंगाना है जो दिल्ली से सेल होगी, परचेज जो होगी वो यूपी में होगी, और माल है 1.5 लाख का, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन को एक बार? दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं एक बार। जैसे सेल होगी दिल्ली से, परचेज होगा यूपी में, और ठीक है, जीएसटी नंबर, पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक वो है। ये बोलता है कि मैं मेरे आधार कार्ड से माल बेच दीजिए, तो आधार कार्ड से ईबी बिल कैसे बनेगा? नहीं, आधार कार्ड से ईबे बिल नहीं बनता है। मैडम ये रूल तो है, बन तो सकता है यू नहीं आर नहीं, पी। आधार कार्ड बार से नहीं बनता है आपका ईबे बिल। आपकी इसमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जाएगी, आपका जो बिल होगा अगर आपका 50,000 से लिमिट क्रॉस करता है तब जाएगा। ठीक है। मैडम ये जैसे ट्रांसपोर्ट आईडी नहीं है, व्हीकल नंबर सेम पार्टी बेचती है, हम्म। तो गाड़ी नंबर डाल के और आधार नंबर डाल के जो हम जीएसटी पे जीएसटी नंबर डालते हैं, उस जगह हम यू आर पी डाल के और पार्टी का आधार कार्ड डाल के व्हीकल नंबर डाल के ईबे बिल नहीं बनेगा क्या? नहीं, व्हीकल नंबर तो है ही मैंडेटरी, पर आधार कार्ड ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके लिए आपका GST रजिस्टर्ड होगा तभी तो आप ईबे बिल जनरेट करेंगे ना। नहीं, ये बिल जनरेट नहीं है, पार्टी पे जीएसटी नंबर ही नहीं है, आधार कार्ड से माल चाहिए उसको। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैडम मेरी अभी बात जो संजू 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 हाँ जी, हाँ संजू जी, बेटा, संजू एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी भैया सर। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित नाम है, फ्रॉम फिरोजाबाद अमित। से। अमित ऐसा सुनो, आप ये कह रहे हो कि हम सेल कर रहे हैं, यानी कि जो पार्टी है मुन्नत है वो सेल कर रही है, और आपका जी नाम है अमित, और आप अमित परचेज कर रहे हो, और आपका पास जीएसटी नंबर नहीं है। जी तो वो मन्नत जो है, जब वो ई बिल बनाएगा, तो जब वो पार्टी जिसको वो बेच रहा है, वहां पे एक ऑप्शन होती है कि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। उसमें आधार या पैन कार्ड का डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो पर्सनल नाम से जाए या किसी कंपनी भी जो परचेज कर रही होती है, उसको वो ई वे बिल का नंबर, उसके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी नहीं है, ई वे बिल बन जाता है।
ये बनता है पहले पार्ट ए बनता है, जब भी उसके बाद पार्ट बी बनाया जाता है उसके अंदर गाड़ी का नंबर डालना मैंडेटरी होता है, लेकिन पार्ट ए के अंदर वो गाड़ी का जो माल है वो मूव नहीं कर सकता अनटिल अनलेस पार्ट बी ना डाला जाए। पार्ट बी में डालने के लिए व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है। पर जो पार्टी परचेज कर रही है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक कॉलम होता है कि अमित ने खरीदा या अमित की कंपनी है और उसका ईवे जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसके कॉलम होता है। जैसे सक्षम भारती या सक्षम भारती फाउंडेशन कोई माल परचेज करती है किसी भी जगह से तो उसके ईवे बिल बनता है। जैसे हमारा माल दिल्ली से कानपुर गया और वो 1 लाख से 50,000 से ऊपर का था तो उसका ईवे बिल बना, लेकिन उसके अंदर ईवे बिल में जब हमने लिखा जीएसटी नंबर तो नॉट एप्लीकेबल लिखा जाता है या एनआर लिखा जाता है उसके अंदर। संजू मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी 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 सर। सर, रेगुलर की जगह नो एप्लीकेबल। पर सर मैंने किसी मेरे को सीए सर ने इसको हम क्या लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं क्या? थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्लास को, जी 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 फिर लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आप जी जी दोबारा बोलेंगे तो। वैसे वैसे हाँ जी इनका हाँ जी। पॉइंट ना जो है एक्चुअली, अगर आप मैम 2 मिनट दो बता दो इन्हें में। हेलो, एम आई ऑडिबल? बताइए। देखो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ईवे बिल होता है यस ना, यस। इनको बता रहा हूँ जिनका जो क्वेरी है। देखो ईवे बिल वैसे नॉर्मली जो मैंडेटरी होता है गुड्स ट्रांस मूवमेंट करने के लिए, ठीक है ना। बाकी जो आप बता रहे हो कि एक आधार ओटीपी से भी बन जाता है ना ईवे बिल, जी वो एक ईवे बिल, उसको ईवे बिल नहीं बोलते, वो ईवे बिल की तरह ही होता है। जो यूआरपी बोल रहे हो ना आप, यूआरपी स्टैंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। जैसे जी जिसका पास जीएसटी नंबर है वो तो सीधा ईवे बिल पे पोर्टल पे बना के सीधा ईआरपी उस पे जाएगा, ईवे बिल के पोर्टल पे जाएगा और ईवे बिल क्रिएट कर देगा, दैट्स इट, बिकॉज ही जी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है ना। ओके दूसरा आप सर। जो कह रहे हो दैट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, इसके पास ईवे बिल का आईडी पासवर्ड नहीं, उस केस में कह रहे हो ना आप। जी 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 यस सर। तो हाँ हाँ हाँ, उस केस में क्या होता है, आधार कार्ड नहीं होता, मतलब आधार कार्ड लगता है उसके लिए, एक फॉर्म होता है वो भी ई वे बिल की तरह ही होता है, ठीक है ना। लेकिन यस उसमें सर। रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड नहीं लगता है। आप अगर उस मूवमेंट ऑफ गुड्स करना चाहते हो ना तो उसमें कर सकते हो आप, ठीक है ना। जैसा मैडम ने बताया बिल्कुल वैसा ही है कि ई वे बिल इज मैंडेटरी अगर गुड्स 50,000 और 1 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, जैसे मैम ने बताया ना, तो वो मैंडेटरी होता है। बट सर्टेन केसेस में क्या होता है, जब आपके पास कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं है और आपको उस स्टॉक पर ले जाना इज कंपलसरी फॉर यू, मतलब आपको बहुत अर्जेंट होता है, तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है कि आप ओटीपी जनरेट करके केवाईसी करके, जिस तरीके से बता रहे हो ना आप यूआरपी के लिए, स्पेशली फॉर यूआरपी, उसके लिए उस केस में होता है, ठीक है ना। ओके बाकी ओके सर। ईमेल इज मैंडेटरी फॉर ऑल द केसेस। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ईवे बिल वाला हमने बता दिया, इसे नो कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ। नरेशन बीइंग टू सोफा परचेज्ड। अब ये वाला हमारा जो परचेज किया, जो हमारी इंट्रा स्टेट थी, वो हमने एंट्री कर ली है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो ये हमारा जर्नल एंट्री फॉर इंट्रा स्टेट सेल के लिए है, ठीक है। वो पहले वाला मैंने शायद गलती से सेल वाउचर में करने लग गई थी, ये है सेल हमारा, ठीक है। तो ये जो मेरी प्राइम है, पहले पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ क्वेश्चन क्या है। रीड कर रही हूँ मैं इसको। 2 अप्रैल 2025 वन सोफा सोल्ड फॉर 40,000 विद 18% जीएसटी टू मिस्टर रमन, जो कि ये हरियाणा के हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो मैं अब जो सोफा बेच रही हूँ वो मैं हरियाणा में बेच रही हूँ मिस्टर रमन को। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मेरा आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। कितना परसेंट लगाया हमने? 18%। अब हम बात करते हैं कि पहले क्या है, जो उसको मैंने बेचा है माल, वो कौन है? मेरा डेटर, मतलब मिस्टर रमन कौन है? डेटर। तो डेटर अकाउंट डेबिट, जो कि टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा, जो जितने में मैंने सोफा बेचा है, मतलब 40,000 प्लस में जो टैक्स है मेरा 7,200, वो ऐड करके 47,200 हो गया मेरा अमाउंट। और टू सेल, सेल कितने में? मैंने सोफा कितने का? मेरा 40,000 का, टू आउटपुट आईजीएसटी, जो कि मेरा 7,200 का हो गया।
ठीक है, इसको अब हम टैली में डालते हैं एंट्री को। पहले मैं ये चेंज कर लेती हूँ। सेल वाउचर्स में आ गए। अब मैं पार्टी का नाम क्या है मेरा, रमन। रमन एंटर किया मैंने और मैंने ये यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मेरा यहाँ पे सेल्स क्या है, विद जीएसटी। ठीक है, अब मेरा आता है यहाँ पे, मैंने क्या यहाँ पे बेचा है, एक सोफा बेचा है मैंने, तो यहाँ पे मैं तो सोफा। ठीक है, यहाँ पे मुझसे पूछा था, मैं एक बार फिर से इसको दिखा देती हूँ कि सोफा जो है मेरा किस हंटर में आता है। देखो, एक तो प्राइमरी मेरा क्या है, फिनिश गुड है, क्योंकि सोफा क्या है, मैंने बना बनाया लिया तो मैंने फिनिश गुड में डाल दिया। यूनिट्स पूछता है वो, क्योंकि सोफा क्या है, पीसेस में है, मैं रॉ मटेरियल नहीं लाई हूँ, तो मैं पीसेस में लाई हूँ, तो मैंने यहाँ पे पीसेस डाल दिया। जीएसटी एप्लीकेबल कराया है मैंने, क्योंकि जीएसटी की एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक डिटेल, यहाँ पे मुझे HSN कोड डालना होता है। एक सारे प्रोडक्ट का एक कोड होता है जो कि मुझे डालना होता है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करके ये डाल दिया था, 9403 सोफे का कोड है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी सोफा, और यहाँ पर आता है मेरा जीएसटी रेट एंड डिटेल्स में हम डालते हैं, यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल बोलता है, तो मैं स्पेसिफिक डिटेल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जो माल बेच रही हूँ 18% का ही है मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया। और यहाँ पे जो टैक्सेबल टाइप है वो मेरा क्या है, अगर मैंने कोई एग्जेम्प्ट माल बेचा है, जैसे नेसेसरी आइटम की कल बात हुई थी, 0% जो होता है वो, एक होता है एग्जेम्प्ट, एक होता है मेरा नील रेटेड। तो जो नील रेटेड वाले मेरा नील रेटेड होता है यहाँ डालूंगी। नॉन जीएसटी वाले जैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारी एंट्रीज करी थी, कुछ आइटम पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो वो हम डाल देंगे, लेकिन जो मेरा आइटम है वो टैक्सेबल है तो मैंने टैक्सेबल में डाल दिया। रेट मैंने 18% डाला है, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम जो मेरा मैं सोफा सेल कर रही हूँ या फर्नीचर सेल कर रही हूँ वो 18% का है, तो 18% डाल दिया। अब यहाँ पे मेरा जो टाइप है सप्लाई, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं सर्विसेज दे रही हूँ यहाँ पर, गुड्स। गुड्स। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या सोफा बेच रही हूँ, तो क्या है, ये गुड्स है, तो ये मैंने डाल दिया। और रेट ऑफ ड्यूटी डाल दिया, जो कि क्या है, वही जो मेरा रेट है वो 18%। अब मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैंने कितना सोफा बेचा है, एक, कितने का है, 40,000 का, एंटर करा। अब मैंने एक और एंटर करा, यहाँ पे मुझे टैक्स लगाना है। यहाँ पे कौन सा टैक्स लगाऊंगी मैं आईजीएसटी। मैं लगाऊंगी IGST। इनपुट लगाऊंगी या आउटपुट लगाऊंगी, आउटपुट। क्यों लगाएंगे आउटपुट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल। सेल कर रहे हैं, तो ये लगा देंगे। ठीक है, अब किसी को डाउट है कि अब ऑटो कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा, मतलब ऑटो कैलकुलेट कर रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो ये मुझे अपने स्पेसिफिक सोफा जो भी मैंने जो आइटम बेचा है उसमें जाके करना है। अब मैंने एंटर करा। अब मैं इसमें एंट्री कर दे, ये नरेशन डालती हूँ, बीइंग 1 सोफा सोल्ड। ठीक है, ये हो गई मेरी सेल की एंट्री। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मैम अगर हम दो स्टेट के बीच में परचेस या सेल कर रहे हैं और अगर उनमें से एक यूनियन टेरिटरी हुआ तो यूटी जीएसटी लगेगा या खाली आईजीएसटी लगेगा? अगर हम फिर अगर से हम रिपीट। दो स्टेट के बीच में परचेज या सेल कर रहे हैं और उसमें से एक स्टेट यूनियन टेरिटरी है, मतलब तो उसमें यूटी जीएसटी लगेगा या ओनली आईजीएसटी लगेगा? नहीं, IGST, UTGST और SGST जब विद इन स्टेट करोगे आप, तब जब ओके मैम। दिल्ली से आप दिल्ली में बेच रहे हो तो ये एक यूटी है, तो तब लगेगा हमारा CGST और UTGST। लेकिन अब इंटर स्टेट में चले गए तो फिर IGST ही लगेगा। ओके मैम। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी इनेबलमेंट का। मैंने GST इनेबल करा था इसके अंदर, तो जो इनेबल किया था मैंने वो किया था F11 से। देखो, मैं एडजस्टमेंट बाद में सिखाऊंगी आपको कि उसकी एडजस्टमेंट कैसी होती है। तो पहले कल जब हमने शुरू में जब कंपनी अपनी क्रिएट करी थी, तो हमने आपको ये बताया था कि कंपनी का जो जैसे हमने मेंटेन करा अकाउंट्स वो करना है, ईबे बिल की ये इनेबल करने हैं, बिल वाइज एंट्रीज ये सारी। यहाँ पर एक देखो, यहाँ पे है GST इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ मैंने यस करा है। अगर मैं यहाँ पे नो करती, फिर मैं यस करके बताती हूँ आपको, यस करूँ तो ये बहुत सारी डिटेल्स मांगता है मेरे से, जैसे
कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ का है। मैंने बताया कि मैं दिल्ली में ही बिजनेस कर रही हूँ, मैं दिल्ली की रजिस्टर पार्टी, तो मैंने दिल्ली लिखा है यहाँ पे, मेरा जो बिजनेस है दिल्ली का है। अब वो टाइप पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है आपका, कि रेगुलर हो या कॉम्पोजिशन में हो या रेगुलर SEZ में हो। तो रेगुलर कंपोजिशन, कल तो मैंने आपको बताया था कि अगर जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करते हैं, उसमें जो रेट ऑफ टैक्सेस होता है वो कम होते हैं। और रेगुलर जो टर्नओवर जैसे डिसाइड है, जो गुड्स के केस में 40 लाख से ऊपर और सर्विसेज के केस में 20 लाख के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे चल गया रेगुलर। अब वो कह रहा है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। मैंने कहा नहीं, मेरे को दिल्ली का ही कर रही हूँ मैं, तो मैंने यस ना करके नो करा है कि मैं एक ही है। अब यहाँ पे मेरे को डालना होता है GST नंबर। मैंने जो मन्नत फर्नीचर मेरा चल रहा है, जो हमारे अकाउंटिंग का जो बेस है पूरा, जिसमें हम अकाउंटिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पे GST नंबर डाल दिया। अब आता है हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। अब यहाँ पे आता है मंथली या क्वार्टरली। तो मैंने बोला कि मेरा मंथली जाता है या क्वार्टरली जाता है, 2 ऑप्शंस होते हैं। आप अपनी रिटर्न को मंथली भेज सकते हो या फिर क्वार्टरली, वो डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है या टर्नओवर जिसकी जितनी ज्यादा है। आपको मान लो महीने में आप बहुत ज्यादा आपके सेल्स हो रहे हैं, परचेजेस हो रहे हैं, तो आपको क्या है, आप क्वार्टरली करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा, तो आप मंथली करोगे। और टर्नओवर पे भी डिपेंड करता है बेसिकली, कि आपके टर्नओवर जितनी ज्यादा है आपको उस हिसाब से फिर मंथली भी जाना है, नहीं तो अगर कम है, आप छोटे ट्रेडर हो, तो आप क्वार्टरली भी कर सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बड़ा बिजनेस करूंगी, मैंने मंथली कर दिया। अब यहाँ पे आता है कि हमारा कनेक्टेड GST डिटेल्स में GST यूजर नेम। जब मैं GST में रजिस्ट्रेशन कर लूंगी तो मेरे को वहां से मिलेगा एक यूजर नेम और मेरे को पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे डालूंगी यहाँ पे यूजर नेम। तो अभी मैंने नहीं डाला क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने नहीं डाला, अदरवाइज यहाँ पे आपको वो डालना होता है। अब आता है मोड ऑफ फाइलिंग, कि आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो वो DSC के थ्रू करोगे या EVC के थ्रू करोगे। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको DSC क्या है और EVC क्या है। तो जो DSC है उसका फॉर्म होता है, फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये एक पेन ड्राइव की तरह होता है, और आपका जो भी आप जो फाइल करोगे डिजिटली साइन कर देगा, चाहे आपको PDF साइन करना है या आपको रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करेगा, तो ये डिजिटली साइन कर देगा। दूसरा होता है मेरा EVC, जो कि है मेरा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इसमें क्या होता है मेरा, कि एक OTP आता है मुझे, और मैं OTP के थ्रू अपने रिटर्न को फाइल कर सकती हूँ। तो ये मैंने कहा मेरे को DSC तो मैंने नहीं बनवाया है, अमन ने, जो मेरा जो प्रोप्राइटरशिप है, जो प्रोप्राइटर है, उसने DSC नहीं बनाया है, तो मैंने EVC कर दिया। अब आता है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। ई इनवॉइसिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग होती है जो जनरेट होती है तब जब आप कोई जैसे आपने आपकी टर्नओवर ज्यादा है, आपको कुछ मैंडेटरी है जो ई इनवॉइसिंग करनी है आपको, ठीक है। तो वो जब जैसे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा जाएगी तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, और आपने जैसे ही टैली में एंट्री करा तो आपको GST के पोर्टल में डालना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली GST के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ई इनवॉइसिंग नहीं रखी है, मैंने नो कर दिया इसको। ई वे बिल मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ। ई वे बिल क्या है। ई वे बिल जो है इलेक्ट्रॉनिक वे है, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब अगर आप गुड्स को यहाँ दिल्ली से ही कहीं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर या कहीं पे भी आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजोगे, तो बेसिकली वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए बनाया जाता है, कि यहाँ से माल यहाँ तक जा रहा है, तो एक ई वे बिल जनरेट करेंगे। तो पहले भी मैंने एक इनवॉइस बनाया था, जो कि मेरा जो लिमिट है वो 59,000 चला गया था, 50,000 से ऊपर। तो ये जो लिमिट है इसकी, वो 50,000 से जैसे ही मेरा ऊपर जाएगा तो ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो चाहे आप जो 50,000 है ना, ये नहीं है कि 50,000 है तो मैं बाहर ये दिल्ली में बेचूंगा तो नहीं लगेगा। मतलब दिल्ली में तो वैसे नहीं लगेगा, क्योंकि इसका लिमिट अलग है, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। वैसे मैक्सिमम स्टेट में क्या है कि अगर 50 से ऊपर गया तो आप चाहे इंट्रा स्टेट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या फिर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, दोनों में ही, मतलब विद इन स्टेट कर रहे हो सेल, तभी भी आपको 50 के ऊपर ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अगर आपने विदाउट दूसरे स्टेट में, आउटसाइड स्टेट में भी किया है, तभी भी आपको मैंडेटरी है। लेकिन दिल्ली और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे जो लिमिट है वो 1 लाख रखी गई है। मतलब अगर आप दिल्ली में मान लो उत्तम नगर से माल भेज रहे हो, रोहिणी में भेज रहे हो, तो आपको 1 लाख का जब बिल जाएगा ऊपर, तभी आपको ई वे बिल बनाना है, अदरवाइज आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब आता है मेरा एप्लीकेबल फ्रॉम। ये कब से एप्लीकेबल करा है मैंने, जब से मैंने अपनी बुक्स को बनाया, तब से मैंने 1 अप्रैल से बुक्स मैंने बनाई थी, तो मैंने 1 से कर दिया। फिर एप्लीकेशन फॉर इंटरस्टेट मैंने यस कर दिया, और इसको मैंने एंटर कर दिया।
ठीक है, अब आता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट और अदर डिटेल्स। ये भी मैं एक बार यस करके बता देती हूँ आपको। इसमें मेरा बेसिकली एचएसएन कोड और जीएसटी की डिटेल्स वगैरह जाती है। ठीक है, तो मैंने नोट एप्लीकेबल ही रखा है, क्योंकि जीएसटी की रेट डिटेल्स में ऑलरेडी जब जिस हिसाब से मैं गुड्स अलग अलग रेट के भी बेच सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नोट डिफाइन कर दिया कि जब मैं आइटम वाइज जब भी मैं डिटेल डालूंगी तो उस हिसाब से मेरा जीएसटी कैलकुलेट करेगा। मैं मे बी 18% का भी करूँ, मैं 12% का भी करूँ, तो यहाँ पे मैंने नॉट डिफाइन कर दिया। अब ई वे बिल का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि 50,000 रुपए है। फिर मैंने कहा इंटरेस्ट रेट, मैंने कहा 1 लाख रुपए है, ये भी मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने बोला कि थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे इंक्लूड करेंगे हम, पूरी वैल्यू पे, मतलब मेरा जीएसटी के साथ जब इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मैंने 50,000 का माल उस टाइम में खरीदा था, तो मेरा जो 9,000 का टैक्स लग के मेरा 59 का हुआ था, तो जो फुल वैल्यू का जो अमाउंट होगा उस पे एप्लीकेबल होगा जीएसटी। तो मैंने इसको यस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये मेरा एडिशन कन्फर्मेशंस है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, ये मैंने यस कर दिया। और एचएसएन के कोड जो होते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो उसका मिनिमम लेंथ है वो 4 डिजिट का ही होना चाहिए, ऊपर फिर 6 का भी होता है और 8 का भी होता है। तो जो मेरे जो जो आइटम्स हैं वो मैक्सिमम 4 कोड के हैं, तो मैंने 4 रखा इसको और इसको मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ओपन करना होता है आपको, मैंने पहले ही इनेबल कर रखा था पर आपको मैंने इसलिए बता दिया। अब आते हैं हम अपनी एंट्री पे, जो कि थोड़ा ये एडजस्टमेंट का मैं आपको सिखा देती हूँ कि एडजस्टमेंट कैसे होता है, और थोड़ा एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट कैसे होती है। अब जैसे आपने माल खरीदा था, मान लो आपने माल खरीदा, परचेज करा आपने, 10,000 का माल खरीदा, जिसमें आपने 18% का जीएसटी दिया, मतलब 1800 रुपए आपने जीएसटी पेमेंट कर दी। ये आपने किसको पेमेंट किया? शॉपकीपर जहां से आपने खरीदा है, जो बिजनेसमैन है या सेलर है, आपने उसको दे दिया। उसने जो आपका टैक्स क्या होगा, गवर्नमेंट को जमा कराया होगा, राइट? ये उसने क्या किया होगा कि ये जो शॉपकीपर है उसने क्या किया होगा, 1800 रुपए है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया। आपने वही जो 10,000 का माल है वो कितने में बेचा, 20,000 में बेच दिया किसी को, और सेम आपने 18% जीएसटी लगा दिया, मतलब 18% मतलब 3600 रुपए आपने उस पे जीएसटी कलेक्ट कर लिया। ये किस लिए कि आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है, ठीक है। लेकिन सेम गुड पे ही जो आपने 20,000 का बेचा है वो तो आपने 10 में खरीदा था, तो मतलब उसमें आपने 1800 तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो गवर्नमेंट को। क्या आप 3600 का थोड़ी अब टैक्स दोगे? तो 3600 में से आप 1800 माइनस करोगे, तो अब आपको कितना देना है? 1800 रुपए देना है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अल्टीमेटली 3600 ही जाएगा उस पे, लेकिन 18 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं 1800, तो अब 1800 ही मैं बेचूं वो गवर्नमेंट को जमा कराऊंगी। तो अब मैं ये एक मेरे 2 केसेस हैं, एक जब मेरा इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा, और एक मेरा केस है जब मेरा इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैंने बोला है कि मेरा इनपुट कम है और मेरा आउटपुट ज्यादा, मतलब मैंने जो फर्स्ट वाला केस आपको समझाया, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि आपने परचेज किया 10,000 का, जिसमें 1800 रुपए का आपने टैक्स जमा करा दिया, और मतलब दे दिया, वो गवर्नमेंट में जमा हो गया। और सेल किया आपने 20 का, मतलब 3600 का, तो आपने 3600 रुपए मतलब माइनस करके 1800 अपने गवर्नमेंट को जमा कराओगे। तो जो 3600 है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपको ज्यादा, मतलब आउटपुट आपको ज्यादा देना था गवर्नमेंट को, 3600 देना था, ठीक है, लेकिन आपको इनपुट कितना है, 1800 का ही मिला है। तो जो नेट आएगा वो क्या होगा, जीएसटी पेबल। मतलब अब मुझे कितना पेबल करना है, 1800 रुपए करना है। तो जैसे हमने एंट्री करी थी पहले कि हम क्या कर रहे थे कि आउटपुट जो है हमें डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, अब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी अगर आप कोई है, मान लो आपका यहाँ पर हमने बोला कि 1800 है, ये लिख दिया। फिर हमने लिखा आउटपुट एसजीएसटी, वो भी डेबिट, क्योंकि हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं कि मेरे कितने कितने आउटपुट से मैं कितनी पेमेंट इनपुट ले सकती हूँ। मतलब अल्टीमेटली जो आपका इनपुट है वो क्या है, आपने कितना पैसा एडजस्ट करना है अपने आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे भी मैंने डेबिट और आउटपुट आईजीएसटी, अगर कोई आईजीएसटी है तो वो भी डेबिट टू इनपुट के साथ एडजस्ट कर रहे हो आप। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3600 का है तो माइनस 1800, तो ऐसे मैंने यहाँ पे अगर ऊपर मैंने 1800 डाला है, तो नीचे मेरा कितना डाला है मैंने, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, जो भी मेरा सीजीएसटी है एसजीएसटी है उसके साथ मैं एडजस्ट करूंगी, आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करूंगी। और जो डिफरेंस होगा, मतलब मैंने जो 3600 मान रही थी सबका, अगर मैं 3600 मानती हूँ मेरा सीजीएसटी,
और 3600 मानती हूँ मेरा SGST और 3600 ही मानती हूँ मेरा IGST। तो मान लो मैंने 1800 रुपए मैंने कर दिया इनपुट का एडजस्ट, इनपुट CGST, फिर 1800 ही मैंने कर दिया एडजस्ट SGST, और इनपुट का ही मैंने 3600 एडजस्ट कर दिया इसका। तो जो नेट पेमेंट होगा, मतलब जो भी डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? GST पेबल। इतना समझ में आया सबको? मैडम इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, इसमें मैंने फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल समझाया था वो समझ में आया था आपको? नहीं, वो तो मेरे को समझ में आ गया। हाँ, तो उसी की ये बेसिकली एंट्री है। इनपुट CGST है हमारा 3600 और SGST आप 3600। हाँ ठीक है, देखो मैं और IGST है मैडम 3600। हाँ और हमारा आउटपुट जो है वो 1800 है, और आउटपुट SGST वो भी 1800। मैं फिर से एग्जांपल लेके समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? जी जी। ठीक है, तो देखो मैंने लिया, लेट सपोज मेरा आउटपुट CGST है मेरा 3600 रुपए, ठीक है? ठीक है। आउटपुट SGST है मेरा 3600 रुपए, ठीक है? और मैं IGST को भी मैं 3600 ही रख लेती हूँ, ठीक है? 3600। ये तो मुझे वो टैक्स जमा कराना है, ठीक है? लेकिन मैंने जो पेमेंट कर चुकी हूँ वो क्या है? मेरा इनपुट CGST जो कि मेरा 1800, ठीक है। ऐसे ही मेरा इनपुट SGST वो भी मेरा 1800, और ऐसे ही मेरा IGST जो भी इनपुट है वो भी मैंने 1800 ही लिया, ठीक है? तो मेरा कितने का डिफरेंस हो गया? मतलब 36 36 36 कितना हो गया टोटल इसका? टोटल 3600 लगभग। हम आउटपुट में से इनपुट मतलब सॉरी इनपुट 3600 माइनस आउटपुट 1800 हमें पेमेंट हाँ, करना मतलब मैं पड़ेगा। माइनस करूंगी, मैं बता देती हूँ आपको, ये माइनस करेंगे हम। मतलब 3600 3 बार हो गया ना मेरा, मतलब 10,800 तो मेरा टोटल ये हो गया जो तो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है, ठीक है? ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी कितना जमा कर चुकी हूँ? मैं 1800 3 ठीक बार है। कर चुकी हूँ, मतलब 5400 रुपए ये ठीक मैं है। जमा कर चुकी हूँ ना। तो जी 10,000 में से मैं ऑलरेडी जमा कर चुकी हूँ ना, 5400 जब मैंने माल खरीदा था। तो इसको मैं माइनस कर दूंगी, तो मुझे अब कितना देना है? 5400 ही मुझे अब गवर्नमेंट को देना है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा GST पेबल। तो यहाँ पे जो मेरा डेबिट है, वो क्रेडिट है, जो GST पेबल, उसमें मेरा कितना आ जाएगा? 5400 रुपए आ जाएगा। अब समझ में आया? जी मैडम। हाँ तो मैडम इसमें एक क्वेरी है मेरी, जैसे हाँ IGST जो है वो हाँ मेरा मैंने जो फर्नीचर दिल्ली है वो हाँ हाँ और यूपी में सप्लाई माल ले रहा है IGST में, तो हाँ हाँ आउटपुट का IGST कम सेल हो रहा है और इनपुट ज्यादा हो रहा है, तो उसमें हाँ मैं एडजस्ट वो कैसे करें? नेक्स्ट मैं बताती हूँ। देखो, अगर आपके पास ज्यादा है, आपने मान लो, अब मैं इसका रिवर्स कर देती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे मैंने अब माल जो खरीदा है वो मैंने 20,000 का खरीदा था, ठीक है? अब मैंने ठीक है। इसमें 3600 रुपए पेमेंट कर दी। लेकिन जो जी ये मैंने 20,000 का माल खरीदा है, वो मैंने मान लो 2 पीसेस खरीदा हो, अब मैंने एक ही पीस अभी बेचा है, मतलब 10,000 का माल बेचा है, मतलब मैंने 1800 रुपए ही पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। लेकिन मेरे पास तो अभी एक्स्ट्रा पैसे हैं ना मेरे अकाउंट में, जी तो वो उससे तो एडजस्ट हो ही जाएगा। ऐसे उसका एक वो होता है क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं। जैसे एक वॉलेट मान लो आप, कि आप जी जैसे जी जी एप्लीकेशन को यूज करते हो, ओला का ऐप यूज करते हो, उसमें एक वॉलेट होता है कि आपने पैसे डाले, और जितना आपको, जब आपने राइड ली, आपने पैसे पेमेंट कर दिया, और उसमें पैसे सेव रहेंगे, जब आप नेक्स्ट राइड करोगे तब आपका यूज होगा। ऐसे ही क्रेडिट लेजर होता है कि आपने 3600 पेमेंट आपने गवर्नमेंट को दे दिए, लेकिन 1800 मैंने तो देने थे, तो मैं एडजस्ट कर लिया, मतलब 1800 अभी भी मेरे क्रेडिट लेजर में है। जब मैं नेक्स्ट मंथ की रिटर्न भरूंगी तो वो मैं यूज कर लूंगी, ठीक है? अगर मेरा फिर भी नेक्स्ट मंथ भी अगर मेरा रिसीवेबल होगा तो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, मतलब ये यूज हो जाएगा मेरा। जब भी मैं नेक्स्ट पेबल बनेगा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई पेबल नहीं होगा, ये जो मान लो मेरा ये सारा इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया सबको? जी जी। हाँ, आप किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अब मेरा लास्ट ये चल रहा है कि पेमेंट कैसे करना है। जैसे GST जो पेबल करा था हमने खड़ा, अब उसको पेमेंट भी तो करनी होगी ना गवर्नमेंट को। वो चालान के थ्रू होता है, तो चालान जनरेट करेंगे और बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगा, ठीक है? सिंपल एंट्री है, इसको इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी।
तो आज जो हमें समरी हमने क्लास में जो जो डिस्कस किया कि हमने जीएसटी का टाइप डिस्कस कर लिए, एंट्रीज हमने इंट्रास्टेट भी देख ली, इंटरस्टेट भी देख ली, एडजस्टमेंट भी मैंने बता दिया कि कैसे एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। और सारी पेमेंट रिपोर्टिंग वगैरह भी बता दी कि पेमेंट कैसे, जीएसटी आपने पेबल बुक करा, उसको बैंक से पेमेंट कर दिया। अब तक किसी को कोई डाउट हो तो फिर प्लीज मुझसे पूछ लेना, फिर हम कंक्लूड करेंगे क्लास। संजू, हाँ जी मैम। गुड इवनिंग। गुड क्या इवनिंग मैम। संजू, क्या ईवे बिल का इम्पोर्टेंस भी समझा सकते हो सबको? यस मैम, मैं बता देती हूँ। ठीक। मैम ये ना मैंडेटरी है फर्स्ट तो, कि अगर जैसे कि आप 50,000 से माल ज्यादा मतलब बेच रहे हैं, मतलब 50,000 से इनवॉइसिंग जैसे भी आपके क्रॉस होएगी लिमिट, तो आपको मैंडेटरी है, मतलब ये आप बिना इसके ना आप मूव नहीं कर सकते अपने गुड्स को, कि आपने सोचा कि नहीं मैं 50,000 का बना हम लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं, वो आपको ट्रांसपोर्ट वाले पकड़ लेंगे। तो आपको जरूरी है कि आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स की दिखाने की, कि हाँ हमने माल खरीदा है और उसको हम ले जा रहे हैं अपने जो भी आपका जो प्लेस है वहां तक ले जा रहे हैं, तो ये जरूरी है उसके लिए। हम ट्रैक कर सके ना, वो हाँ, जो ट्रैक गुड्स भी जो कर ट्रैक सकते कर हैं। सके। यस और मैम। हम यानी टैक्स अगर जो इवेड करना चाह रहा है, हाँ, कि वो वो नहीं बच देना सकता चाह है। रहा है, यस तो मैम। हम उस यस चीज को ट्रैक कर सकें और चेक रख सकें। यस यस मैम। ठीक है। और एक चीज और संजू, अगर जो तुम समझा रही थी ना कि टोटल हमें कितना जीएसटी पेबल पेबल है, पेबल। तो यस मैम। फिर कभी मतलब हाँ नॉट हाँ। अभी तो बहुत हो नहीं गया, मैं अगर फिर से एक हाँ बारी ना और क्लैरिटी से, अच्छी तरह से समझाया, बट हाँ। और थोड़ी सी क्लैरिटी से समझा देना थोड़ा। अच्छा, मतलब लिखा हुआ वहां पर होता है ना, अमाउंट अमाउंट लिखा लिखा हुआ था। होता है, हाँ, ओके तो ओके। और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ। लेकिन अच्छा, यस। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू मैम। ओके। आप किसी की क्वेरी तो नहीं है, कोई कोई डिस्कशन करना हो? I think we can किसी का wind कोई up here. पॉइंट तो नहीं है? So thank you, Ms. Sanju ma'am, for taking such an amazing class with practical examples. And आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं फोटो ले सकूं रिकॉर्ड उसके लिए। इन द मीन आपसे जो रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और आगे मैं बढ़ना चाहूंगा हमारे लीडिंग पर्सन की ओर फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ दिस सेशन। ओवर टू यू मैम प्लीज। थैंक यू सो मच अभिषेक। और संजू, आपका अच्छा सेशन था। थोड़ा सा समझने में नई चीज थी, समझने में मुश्किल आ रही थी, और आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही थी, पर जहाँ थोड़ी सी मुश्किल हुई तो संजय जी ने इंटरवीन किया और संजय जी ने उस चीज को अच्छे से समझाया एग्जाम्पल्स से। और जहाँ जहाँ जिसको समझ में नहीं आ रहा था, उनके क्वेश्चन हमेशा की तरह अब आ रहे थे और आप उनका पूरी तसल्ली से जवाब दे रही थी। सराहना करूंगी शोभा जी के सुझाव का भी, कि उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसको और इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, और आसानी से समझने के लिए आप किस तरह से इसको मतलब देखिए, हर अच्छा काम करते हैं तो हमें इनपुट्स मिलते हैं, जब इनपुट्स को हम अप्लाई करते हैं तो हम चीज को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्लास थी, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बच्चे उस चीज को आप सब उस चीज को समझ रहे थे, इसी तरह समझते जाइए। जैसे आज संजू यहाँ पर क्लास ले रही है और सबको समझा रही है, इसी तरह से आने वाले समय में आप लोग यहाँ पर क्लास लेंगे, और मतलब इस लायक बने, इतने सक्षम बने कि आप लोग भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से क्लास ले सकें और आने वाले और बच्चों को और अधिक अच्छे ढंग से समझा सकें। शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। थैंक यू। ओवर टू यू अभिषेक। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि हम जैसा कि 14 तारीख को आपको पहले ही बताया है हमने, और मैं दोबारा ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि
14 को हमारी क्लास नहीं होगी। 14 को हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जैसा कि जन्मदिन होता है उस दिन, तो हम उनकी जयंती सेलिब्रेट करेंगे। उसमें कीनोट स्पीकर मिस स्वाति सिंह जी होंगी, जो कि एक एनजीओ की बहुत ही अच्छी फाउंडर हैं, और उनके हम वक्तव्य से आगे देखेंगे क्या हम ले सकते हैं और उस पे हम चर्चा करेंगे। सो ये मेरी तरफ से अनाउंसमेंट थी, और उसका लिंक आपको शनिवार की क्लास के बाद आप सभी को मिल जाएगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा नेहा चौरसिया जी को फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। नेहा चौरसिया जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं? आई थिंक शी इज नॉट हियर। ठीक है, मैं कर देता हूँ फिर। So, good evening, dear friends. On behalf of Saksham Rural Society, I, Abhishek, extend my heartfelt gratitude. A special thank you to Advocate Sanju Saini ji, an esteemed income tax specialist practicing before the Income Tax Appellate Tribunal and executive member of society, for conducting today's insightful session on sales and purchase with GST in Tally. We truly appreciate her dedication and valuable knowledge she shared with us. To our students, thank you for your enthusiasm and active participation. Your engagement made the session more meaningful, and we look forward to seeing the same spirit in near future as well. A special thanks to Ms. Dipti Chawla ma'am, General Secretary of Saksham Bharti and esteemed member of society, for joining us today and her invaluable insight and support during the class. With that, I wish you a wonderful good evening. So good night to all of you, and now you can all leave the meeting. So see you in the next session. Good night, everybody. Thank you. Good night, ma'am. Good night, sir. Good night, all of you friends. Good night.